Good morning, everyone. Today, it's 2nd of March and 4:30 a.m. in the morning. And yesterday, I made a plan for daily targets. Which is like what I'm going to do on a daily basis and what part I'm going to cover of the syllabus. So I thought ki that was a daily target. Then I thought ki I should share what the plan I have made for next 3 months, and the similar plan I have made for prelims last year and I was able to clear that. So what I did, as we all know that prelims is going to happen on 28th May, and now 86 days are left. I know I wrote 87 days because I made that plan yesterday. So it's 86 days now. And what is what I did कि I made a whole plan for next 3 months, and which is, you can see that. And what I did कि I divided the syllabus in different subjects like कि polity, economy, geography, environment, history and science and tech. And in this video I'm going to discuss कि what syllabus, what books I'm going to refer for each subject and how I'm going to cover my syllabus for each subject. So let's start from the beginning. That first topic is polity, and I'm going to cover Lakshmikant plus PT 365 for polity and governance of vision. And then for IR, I'm going to cover PT 365 only. Although I have covered, sorry, for IR, I have covered newspaper, but then for prelims point of view, I'm going to cover only PT 365 for IR. So first resource is going to be, and this is Indian Polity Lakshmikant. This is 5th edition which I'm following. And before mains, I have covered it quite few times. प्रीलिम्स से मतलब मेंस के बाद मैंने इसको कवर नहीं किया था. आई वाज मोर फोकसिंग ऑन मेंस. सो या आफ्टर it took me a it also it took me a while to complete it. और इसे ख़त्म करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, नियरली 1 वीक और 10 डेज़. बट ये मुझे लग रहा है कि हो जाएगा कवर. वैसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं, बट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बुक में ही कुछ चीज़ें जो कि फैक्चुअल हैं वो मेंशन कर दी हैं. और दिस इज़ दिस सोर्स फॉर पॉलिटी स्टैटिक पार्ट, and this is the only source I'm going to follow for Indian polity. And beyond that, for PT 365, and this is PT 365. I prefer to cover the prefer to cover in soft copy, because न्यूज़पेपर और ये सारी चीज़ें ना मंथली कंपाइलेशन ऑनलाइन मोड में पढ़ते पढ़ते ना अब आदत हो गई है, एंड ऑफलाइन पढ़ने में मेरे को बहुत टाइम लगता है. सो दैट्स वाई आई प्रेफर टू रीड इट इन सॉफ्ट PDF फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट करके ना मतलब इजीली हो जाता है मेरे से ख़त्म. एंड इट्स नियरली ऑफ 60 पेजेस, और जिसमें बहुत सारे टॉपिक जैसे सेडिशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये बहुत सारे टॉपिक रिपीटेटिव है. तो अगर कोई काफ़ी लंबे टाइम से न्यूज़ को फॉलो कर रहा है तो उसके लिए इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. एंड विद इन अ डे you will be able to complete it. Nearly 4-5 hours you will take maximum, and then you will complete it, because बहुत सारी repetitive news है, so you don't have to put so much effort on that. And I forgot to mention one important thing कि पॉलिटी के लिए ना I also cover this Indian Constitution at work. कि कई बार क्या होता है ना, जैसे लिबर्टी की डेफिनेशंस वगैरह कई बार ना इससे पूछ लेते हैं, तो वो मतलब बेसिक कंप्लीशन एक होती है ना कि बेसिक डेफिनेशंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो जस्ट दिस बुक एंड लक्ष्मीकांत, दैट्स इट फॉर पॉलिटी. एंड देन सेकेंड सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू फॉलो इकोनॉमिक्स. एंड इकोनॉमिक्स के लिए आई एम फॉलोइंग ओनली श्री राम IAS and PT 365 of economy and budget and economic survey. I'm not going to complete budget and economic survey from the government document because it's quite lengthy. I'm going to cover it from that basic resource visions compilation, because it will take less time. और यार एक दो क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में इकोनॉमिक सर्वे और बजट से, इनपुट आउटपुट रेशियो है वो काफ़ी लो है फॉर दिस लेंथी डॉक्यूमेंट. सो
आई एम गोइंग टू कवर ओनली श्री राम आईएएस एंड PT 365 इकोनॉमी, बट राइट नाउ एंड अभी मेरे को श्री राम आईएएस की बुक मिल नहीं रही है एंड सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट स्टैटिक पोर्शन के लिए ना मतलब कॉन्सेप्ट, क्योंकि इकोनॉमी में क्या होता है ना, या तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे और या जो फैक्चुअल आएंगे वो आएंगे करंट से। तो स्टैटिक पे अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो दैट इज़ फेयर इनफ टू यू नो कि कोई भी एक बुक आप रेफ़र कर लो। बहुत सारे लोग मुनाल सर के बुकलेट रेफ़र करते हैं और मैंने वो पढ़ा नहीं है एंड दैट इज़ क्वाइट बल्की फॉर मी, सो आई डोंट वांट टू स्टार्ट अ न्यू थिंग जस्ट बिफोर 3 months ऑफ एग्जाम। सो या दैट्स इट फॉर इकोनॉमी। और इसके अलावा जो थर्ड रिसोर्स है वो ज्योग्राफी है। एंड इन पास्ट फ्यू ईयर्स ना ज्योग्राफी की वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और नियरली लास्ट ईयर 17 to 80 क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू रेफर इज 11th 12th की NCERT, और जो कि 11th की 2 NCERT हैं और 12th की 2। एंड उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मैपिंग। और मैपिंग के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू ना कि उसमें मैप्स पे मैं सारी चीज़ें बना के देखूंगा एंड जस्ट नॉट जस्ट रीडिंग इट, बिकॉज सॉरी, बिकॉज सिर्फ फॉलो करना रीड कर लेना मैपिंग के लिए इट्स नॉट गोइंग टू फेच मार्क्स। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मैप पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि वाघोरा रिवर वाला क्वेश्चन आ गया था जनता केव का, तो उसके लिए आपको मैपिंग करनी पड़ेगी। एंड द रिसोर्सेज आई एम गोइंग टू फॉलो फॉर दिस इज़ इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट 11th ज्योग्राफी, और इसके कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट जैसे वेजिटेशन एंड जो रिवर सिस्टम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे मैप्स वगैरह भी दे रखे हैं काफ़ी। तो ये तो हो गया 11th का। इसके अलावा जो दूसरी बुक है वो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों बुक्स तो मतलब पढ़नी ही पढ़नी है, इसके लिए कोई देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव, यू हैव टू रीड इट, यू कांट जस्ट इग्नोर इट। और इसके अलावा जो 12th की 2 बुक्स आती हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि एक ये है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और ये बेसिक जस्ट एक बार आप रीड कर लो और उससे थोड़ा सा डाटा, और बेसिकली ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट नॉट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इसके अलावा देयर इज़ दिस इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कभी कभी जो कि मतलब डायरेक्ट फैच कर देते हैं आपको मार्क्स। जैसे कि इस साल एक मॉन्जाइट वाला आया था जो केरला कोस्ट वो केरला के कोस्ट अराउंड पाया जाता है, तो वो वाला क्वेश्चन जो था वो अगर आपने ये पढ़ी होती तो आप एलिमिनेट कर सकते थे कुछ ऑप्शंस को। तो दैट्स इट फॉर ज्योग्राफी। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट के लिए जो बेसिक बुक है जो कि सभी लोग रेफ़र करते हैं वो है शंकर, एंड दिस नेम इज़ शंकर IAS। ये सभी लोग रेफ़र करते हैं। इसमें क्या है ना कि इसमें ये वाली बुक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में जनरली होता क्या है कि क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आते हैं करंट से, मोस्टली कंसेप्चुअल जो स्टैटिक क्वेश्चन है उनकी रेलेवेंस अब कम होती जा रही है। बट एक बार अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उसके लिए आपको ये बुक रीड करनी पड़ेगी। एंड बिकॉज आई हैव रेड इट इन जैन, तो इसे कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि अभी फ्रेश है काफ़ी, मतलब जो चीज़ें हैं दिमाग में, जो कॉन्सेप्ट्स हैं। और इसमें 30 चैप्टर्स हैं, तो 30 के 30 एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि इसमें ना जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जैसे कि एक्ट्स एंड पॉलिसीज़, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNEP CBD, क्योंकि अभी COP15 हुआ था CBD का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस तरीके से कुछ जैसे कि हेल्थ इफ़ेक्ट्स की लेड का या फिर ट्रांस फैट्स का हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसके अलावा जो इस स्टैटिक पोर्शन के अलावा व्हाट आई जनरली डू कि देयर इज़ अ क्वेश्चन बैंक ऑफ स्टैटिक टॉपिक्स विच इज़ दिस बुक एंड दिस इज़ बाय S निरंजन। तो इसमें अगर आपने स्टैटिक एक बार रीड कर लिया है ना, एंड इफ़ यू आर डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक, तो आपका स्टैटिक ना बहुत सही हो जाता है। मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो आपके स्टैटिक क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस ना बहुत कम हो जाते हैं। और इसमें मैंने हाईलाइट भी कर लिया, मतलब आई हैव डिड फ्यू चैप्टर्स, सो ताकि पूरी बुक रीड ना करनी पड़े मेरे को, जो हाईलाइटेड सेक्शन है सिर्फ मुझे वही रीड करना पड़े। और एनवायरनमेंट की जो PT 365 है वो आ चुकी है, बट I didn't read it till now, तो that I'm going to cover it on a daily basis, कि जो टारगेट्स मैं डेली सेट कर रहा हूँ उनमें I'll include it and I'll cover it। उसके अलावा जो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इसके लिए आई एम गोइंग टू डू कि आई एम यूजिंग मैप्स, और वहाँ पे मैं जितने भी नेशनल पार्क्स हैं या फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उन्हें मैप पे बना के और उनके आसपास कौन सी रिवर है या फिर कौन सा स्पेशल एक मॉन्यूमेंट है, इस तरीके की चीज़ों को वहाँ पे आई ड्रॉ ऑन मैप, ताकि उसके आसपास की चीज़ों के बारे में पता रहे। और क्वेश्चन क्योंकि
फैक्चुअल नहीं आ रहा, वो ना दो चार चीज़ों को इंक्लूड करके आ रहा है, तो दैट विल हेल्प मी टू यू नो accumulate all the important things in near that park or wildlife sanctuary or the wetland sites. इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ हिस्ट्री. हिस्ट्री में क्या है कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न. तो मॉडर्न के लिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई एम गोइंग टू रेफर दिस बुक. इट इज़ स्पेक्ट्रम एंड सॉरी इसकी थोड़ी सी ना हालत ख़राब है, तो ये मैंने काफ़ी रीड कर रखी है और ये थोड़े 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है. सॉरी फॉर दैट. तो यहाँ से मतलब ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है. अभी ज़्यादा इसको वो नहीं करते वरना ये थोड़ी और फट जाएगी. सो इसके लिए मैंने क्या कर रखा है ना कि इसके लिए जो मेंस के लिए मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो मेंस के लिए तो मैं वहाँ रेफ़र कर लेता हूँ. बट जो करंट है, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, मैंने व्हाट आई डिड कि देयर इज़ दिस, आई मेड छोटू नोट्स एंड दीज आर दोज नोट्स. इसमें मैंने क्या कर रखा है ना, जो फैक्चुअल जैसे कि जो मूवमेंट्स हैं, पीजेंट्स मूवमेंट्स या सिविलियन मूवमेंट्स या ट्राइबल मूवमेंट्स, उसके मैंने ना छोटे से नोट्स बना लिए हैं, ताकि प्रीलिम से पहले ना आई रिवाइज दम क्विकली, ताकि मुझे किसी और बुक पे ना जाना पड़े. आई रिवाइज फ्रॉम है डिफरेंट कमीशंस और न्यूज़पेपर या फिर जो आर्टिकल्स किसने कौन से लिखे हैं, किसने कौन सी मैगजीन्स पब्लिश की हैं, और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वो थोड़ी सी लिख ली है जो कि फैक्चुअल है, जिससे रटना है. तो दैट्स इट फॉर मॉडर्न. एंड एंशियंट मिडिएवल के लिए व्हाट आई डिड ना, आई फॉलोड ओल्ड एनसीईआरटी, और वो मैंने एक बार रीड करी, क्योंकि एंशियंट मिडिएवल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो पता नहीं कौन सी बुक से आ रहे हैं, और उसके लिए तो बेसिक कितना भी पढ़ लो वो नहीं हिलने वाले. जैसे लास्ट ईयर 2022 में आए थे, नो वन न्यू व्हाट वाज द रिसोर्स, बट स्टिल रिवीजन के लिए व्हाट आई डिड कि आई फॉलो लूसेंट, और यहाँ से ना जो बेसिक है वो रिवाइज हो जाता है बहुत जल्दी, एज़ कम्पेयर टू जस्ट रीडिंग योर एनसीईआरटीज़ और कंप्लीटिंग दैम. वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, बट यहाँ पे लूसेंट को कवर करने में कम टाइम में, और ये एनसीईआरटी के नोट्स ही हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है. सो दैट्स इट फॉर एंशियंट एंड मिडिएवल. उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का यार पॉइंट है नहीं, क्योंकि इनपुट आउटपुट रेशो ना बहुत नीचे है, और इसमें वो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो वैसे भी हिल नहीं रहे हैं, है ना. इसके अलावा साइंस एंड टेक जो है, इसके लिए सोल रिसोर्स जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है PT 365 SNT एंड 12th की बायो की NCERT के लास्ट 4 चैप्टर्स. अभी मेरे पास बायो की बुक है नहीं, वो मतलब PDF फॉर्म में ही है मेरे पास, सो वहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं. उसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है ना वो है GS2, सॉरी इम्पॉर्टेंट जो पेपर है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि बच्चे पेपर 1 में तो क्वालिफाई ईजिली कर जा रहे हैं, लेकिन पेपर 2 में वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे. तो और CSAT का लेवल भी काफ़ी हार्ड हो गया है इन लास्ट फ्यू ईयर्स. तो इसके लिए मेरा जो इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है कॉम्प्रिहेंशंस. तो कॉम्प्रिहेंशंस के लिए व्हाट आई डू कि आई फॉलो PYQs, और पिछले साल के PYQs लगा लेता हूँ कॉम्प्रिहेंशंस के, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ हाउ टू रीच द आंसर. एंड फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग आई फॉलो वन बुक ऑफ टाटा मैग्रो-हिल पब्लिकेशन की है, आई कांट रिकॉल द नेम राइट नाउ, और सॉरी अरिहंत की है शायद से, और अभी मेरे को मिल नहीं रही वो, बट व्हेन आई विल गेट इट, मतलब जब मेरे को मिलेगी ना तो आई विल मेक अ वीडियो और आई विल पुट पिक ऑफ दैट. इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो तो मैं विजन के जो कंपाइलेशन आती है PT 365 की गवर्नमेंट स्कीम्स की, वहाँ से फॉलो करूँगा. बस उसका इंडेक्स का यूज़ करूँगा मैं फॉर कंप्लीटिंग इट रादर देन जस्ट रीडिंग ऑल द PDF, क्योंकि वो बहुत लंबी होती है और 1-2 स्कीम्स आती हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब स्मार्टली वर्क कर सकते हैं. सो दैट इज़ माई स्ट्रैटेजी फॉर prelims. I made same kind of strategy for last year as well, and I within 3 months I was able to clear it. So I'm again following the same strategy. और या ठीक है, मतलब एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम की तरह लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की लोड नहीं है, मतलब इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ नॉट लाइफ. और चिल करो एंड एन्जॉय द प्रोसेस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. और डेली टारगेट्स अपलोड होते रहेंगे, एंड yeah, thank you and all the best.